Yes, sir. Okay. Okay, Kashmir. Dilsha doesn't matter. Dilsha doesn't matter. You can reply by chats. Okay. Students, what she's saying it that is projectile motion is the motion of a body under the what he said it under the influence of external force. Yes, sir. तो वो तो फ्री फॉल भी हो सकता है या लीनियर फोर्स भी हो सकता है. प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या? और स्पेस में होगा. It will be in space. You mean to say that means it's a three-dimensional motion? No, 2 dimensional. So how can it be in space? Like in air or something. Students, your projectile motion is likely two-dimensional. It's almost identical to that of your circular motion, but it can be considered in a given plane and not space. I repeat, students, projectile motion is a two-dimensional motion. That means यहाँ पे students दो simultaneous motion होते हैं. Projectile has two simultaneous motion, students, which are mutually perpendicular. ध्यान से सुनना, two simultaneous motion which are mutually perpendicular. How are these motions? One vertical and other is horizontal. One vertical and other horizontal, and are independent of each other. And are independent of each other. Such a motion is called projectile motion. Students, are you getting the statement, students, what exactly I put forward on the board? No, sir. Not able to get it? No. Okay, तो कशिश तुम्हारे हिसाब से जो तुमने definition बोला वो तुम्हें समझ में आ गया था? Yes, sir. Like कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव करता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. वो तो मुझे समझ आया, लेकिन ये नहीं समझ आया. अरे तो वो जरूरी है कि वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा? हाँ, अगर तुम्हारे डेस्क पे पेन है, पेन को छोड़ो, ऐसा ऐसा हाथ में से करके छोड़ो उसको. कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सर, कर रहे हो. हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है या वो लीनियर मोशन है? लीनियर मोशन. तो फिर वो प्रोजेक्टाइल, यानी जरूरी नहीं कि उसको प्रोजेक्टाइल ही बोले. समझ में आ रहा है? यस सर. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन जहां पे दो साइमल्टेनियस मोशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये किसकी वजह से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. स्टूडेंट्स, ये जो मोशन है इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हो रहा है. अभी how do you put forward this, students? Let us take a simple example, students. एक तरफ मैं लिखता हूँ, students, everybody listen carefully, speed. दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ distance. Okay, ध्यान से सुनना students, ये मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ पहले. You have to describe what kind of motion the body is going to have it. Okay, सारे केस में. पहले केस में speed constant है. Sorry, not distance, direction of motion, students, not distance, direction of motion. पहले केस में speed constant है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट है. तुम्हें डिस्क्राइब करना है मोशन कौन सा होगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट विल बी. सेकंड केस में स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होता है, कौन सा टाइप का मोशन है.
थर्ड केस में स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट इज। चौथे केस में दोनों चेंज हो रहा है। चलो कोई बता सकता है व्हाट टाइप ऑफ मोशन द बॉडी इज अंडरगोइंग? पहले केस में स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज आल्सो कांस्टेंट। बताओ। Now students, what kind of motion the body is going to have? Is it like uniform, non-uniform वैसा? Pardon? Is it like non-uniform, uniform that way motion? Yeah, you can, but you can describe the motion also in that case, whether it's linear or what exactly it is. Circular, rotational, So it is oscillatory. linear motion. Of course, it's linear, but under the influence of keeping speed constant, direction constant. So what exactly? It's a uniform linear motion. Students, ये कौन सा होगा मालूम है? देखो, speed भी constant है, direction भी constant है. For example, a car going on a straight road. तो वहाँ पे speed भी constant है, direction of motion भी constant है. तो what kind of motion is this? The body is undergoing linear motion. Students, but लेकिन ये क्या है? Uniform. Are you getting it? The body is going with uniform speed. Is this clear? Yes. Second case में speed is constant, direction changing. चलो. Best example. Speed changes. Sorry, speed is remaining constant. Direction is changing. Anybody can tell me what is it? Uniform, circular. Absolutely correct. Absolutely correct. Labdi. Uniform circular motion. Students, ये तो speed is constant direction. यानी कोई भी body को अगर तुम circular path में लेते हो तो direction of motion goes on changing. हमेशा tangential जाएगा. लेकिन body का speed constant होगा. For example, Earth revolving around the sun. तो ये UCM का example होगा. अभी speed change हो रहा है, direction remains constant. Speed is changing, direction remains constant. Non-uniform motion. नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन मुझे डिस्क्राइब करो ना कैसे टाइप का मोशन है ये? Non-uniform, linear. Of course, it's a linear motion. Is the best example. Can I say it's a free fall? Students, a body is made to fall freely under the influence of gravitational force of the earth. Students, is my voice cracking? Students, is my voice cracking? Oh, it's Oh. clear. No, sir. It's clear. Okay, Dilsha, there is a problem at your end. Are you getting it? And I could see that you have a strong network, but I don't know why you are saying it that the voice is cracking. Don't give a chance for not attending lectures. Students, यहाँ पे देखो, speed changes, direction remains constant. यानी a body said to have a free fall. Students, कोई भी body को तुम release करते हो तो क्या होता है? उसकी velocity बढ़ती रहेगी. Initial उसकी velocity 0 होगी. After 1 second, it will be 9.8 meter per second. At the end of 2 seconds, it will be how much? 19.6 meter per second. At the end of third second, 29.4 meter per second. At the end of fourth second, 39.2 meter per second. Then it will be 44.1 meter per second. So speed बढ़ती रह रही है, लेकिन straight direction है. So can I say speed is changing, direction remains constant? Free fall under the influence of gravitational force of the earth. Are you getting, students? Yes. Students? Yes. Yes, sir. अभी मुझे ये बताओ, दोनों चेंज हो रहा है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, ये कौन सा मोशन होगा? हाँ स्टूडेंट्स, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, ये कौन सा मोशन होगा बताओ? अरे सर, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो सर ऐसा करते हैं ना, अगर मैं ग्राउंड पे हूँ और मैंने बॉल को किक मारा तो बॉल पहले ऊपर जा रहा है, फिर थोड़े टाइम के लिए पैरेलल जाएगा ग्राउंड से और फिर उसके बाद में ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होगा। अरे हाँ सर, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है तभी उसकी स्पीड कम होगी, है ना? डायरेक्शन टेंजेंशियल है। फिर जब बॉल हॉरिजॉन्टल जाएगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, फिर जैसे वो ग्राउंड की तरफ आएगा वापस उसकी स्पीड बढ़ेगी। अरे हाँ सर, यानी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन, हाँ सर हमेशा अगर मैं टेंजेंट दिखाऊं तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अरे यार सर, ये तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन एन एक्स वाई प्लेन। अगर मैं स्पेक्टेटर हूँ और मैं मैच देख रहा हूँ, फुटबॉल मैच देख रहा हूँ, तो बॉल तो पैराबोलिक पाथ जा रहा है,
It's a parabola. Example, a bullet fired from a gun. सपोज अगर कोई बुलेट को फायर कर दिया है तो पहले तो बुलेट बहुत ही हाई वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन जैसे वो आगे जाती है तो उसको फोर्सेस एक्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी फुटबॉल के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे भी देखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक तो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस, ऊपर से वेट ऑफ द बुलेट। तो क्या बुलेट हमेशा सीधी जाएगी? नहीं सर, अगर कोई टारगेट सामने नहीं है तो बुलेट का पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। अरे सर, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या? मोशन ऑफ अ बॉडी, motion of a body under the influence of gravitational force of the earth, where the speed of the body goes on changing and the direction of motion also changing, and the path is parabolic, such a type of motion is called projectile motion. क्या ये क्लियर हुआ अभी? हाँ स्टूडेंट्स, is it clear what exactly projectile motion is? Motion of a body in which the direction of motion goes on changing, speed of the body also goes on changing, of course due to the external forces acting on the body, and the body has two-dimensional motion we consider. Path is considered to be a kind of a parabola, a curved path. Such kind of a motion is called projectile motion. अगर मैं सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता हूँ तो वो तो फ्री फॉल भी हो सकता है, यहाँ पे भी तो ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, लेकिन क्या इसका पाथ पैराबोलिक है? ये देखो, ये फ्री फॉल, और ये देखो, ये तो स्ट्रेट पाथ है और ये पैराबोलिक हुआ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग Yes, sir. इट? हाँ ओके, क्या सर। इसको मैं इरेज कर दूं अभी? सर वेट 2 मिनट्स। जो भी लिखो करेक्ट लिखना, प्लीज डोंट रन इनकरेक्ट इन्फो। Can I erase, students? Yes sir. Okay, students. So what exactly we consider as students? Now when you look into the concept of projectile motion, ये ध्यान में रखना, ये एक two dimensional motion है, यानी it can be in an x, y, y, z और z axis. Okay? और ये क्या है? Two simultaneous motion. Okay? और ये दोनों motion mutually perpendicular to each other है. Am I getting it? एक है vertical और एक है horizontal and are independent of each other. And this is under the influence of gravitational force. Students, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, सिर्फ ग्रेविटी है, यानी यहाँ पे दूसरे भी फोर्सेस है, उसको निग्लेक्ट करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहा है? एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी फॉर एग्जांपल मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक तो ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो चेंजेस, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रहा है, ऊपर से अर्थ भी तो रोटेट कर रहा है, मतलब उसका रोटेशन बहुत कम है, स्पीड इज रोटेशन इज वेरी स्मॉल।
लेकिन हम जब भी समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन टू बी निग्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस, इसको हम कंसीडर करते हैं ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ, बाकी को निग्लेक्ट करना है। नाउ अभी यहाँ पे देखो ये साइमल्टेनियस मोशन कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन both changes at each instant, यानी एवरी टाइम ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ये जो है टू डायमेंशनल मोशन, दैट मींस इट कैन बी ईदर अलोंग एक्स वाई प्लेन, इट कैन बी वाई जेड प्लेन, और इट कैन बी जेड एक्स प्लेन। लब्धी, स्पेस का मतलब क्या, एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, हेलो, अगर मैं थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल दूं ना, तो बर्ड फ्लाइंग इन एयर, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन एयर, अ काइट फ्लाइंग इन एयर, वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। ये टू डायमेंशनल मोशन है। अभी हम इसको बोलते हैं कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स? इसको समझने के लिए व्हाट यू ट्राई टू डू, यू थिंक इन दिस मैनर के फुटबॉल को जब भी हम लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स, या उसको प्रोजेक्टाइल के हिसाब से ज्यादा या किक मारते हैं, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर सपोज तुमने बॉल को किक मारा, ओके, दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस, ओके, एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, this is x axis, y axis, and the object is made to go in a parabolic path, students. Then xy plane, this is the origin we consider. तो अभी ये साइमल्टेनियस टू मोशन कैसे बताते हैं स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हुआ बोलो, ध्यान से देखना, बॉल यहाँ पे है, फिर बॉल कहीं यहाँ पे होगा, फिर बॉल कहाँ पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, फिर बॉल यहाँ पे होगा, और वापस ये बॉल स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को। अभी ये हम साइमल्टेनियस कैसे बताते हैं, हाउ इज इट? तो टू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स, फिजिसिस्ट ने क्या किया मालूम है, बॉल जब भी लॉन्च हो रहा था या ग्राउंड के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया मालूम है, ग्राउंड को एक मिरर की तरह समझा स्टूडेंट्स, ग्राउंड को एक मिरर की तरह समझा। यानी ये सोचो कि एक मिरर हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और दूसरा मिरर वर्टिकल रखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये दो मिरर है, दो मिरर, एक मिरर को हॉरिजॉन्टल रखा है, दूसरे मिरर को वर्टिकल रखा है। हाउ आर दीस टू मिरर्स? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अभी फॉर एग्जांपल प्लेयर ने बॉल को किक मारा, तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है वो वर्टिकल मिरर को देखेगा। स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से बॉल कैसे जा रहा है? अगर सपोज आई एम अ व्यूअर और मैं ये वर्टिकल मिरर को देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बॉल कैसे जा रहा है? मेरे हिसाब से तो बॉल ऊपर नीचे जाएगा। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं मिरर में देख रहा हूँ स्टूडेंट्स। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे तो बॉल ऊपर नीचे दिखाई देगा, ऊपर जा रहा है वापस बॉल नीचे आ रहा है, वहां पे थोड़ी वो है, वहां पे तो लीनियर मोशन दिखाई देगा मुझे। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? सर कैसे ऊपर Yes. नीचे है? क्या बोल रहे हो? सर कैसे ऊपर नीचे है? My girl, you're looking into the mirror, you're not looking at the football. The ball is kicked over here, you're looking at the mirror. Lavdi, you are raising the question. हाँ Now what do? You tell your brother, if you have a brother, you stand in front of a mirror, tell your brother to throw a ball in parabolic and you look at the mirror. You will find that the ball has just gone up and down. Vertical mirror. Are you getting it? You are not throwing it. You are looking at one end. तुम सामने वाले मिरर को देख रहे हो। अभी ये वाला मिरर को देखो, नीचे वाले मिरर को, बॉल ऐसे जा रहा है, तुम्हें क्या दिखेगा? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, उसी का मिरर इमेज। तो देखो, बॉल यहाँ पे है तो उसका इमेज यहाँ पे होगा, बॉल यहाँ पे तो उसका इमेज यहाँ पे होगा, बॉल यहाँ पे तो उसका इमेज यहाँ पे होगा। तो जब भी बॉल पैराबोलिक जा रहा है तो जो बंदा हॉरिजॉन्टल मिरर को देखेगा उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन में ही दिखेगा ना। समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट? सर वो पैराबोलिक मोशन नहीं दिखेगा मिरर में? तो मिरर में कहाँ से पैराबोलिक दिखेगा? मिरर में कहाँ से पैराबोलिक दिखेगा? तभी जाके तो बोलता हूँ ना, these are what two simultaneous motion which are mutually perpendicular, one vertical, another horizontal. One vertical, another horizontal, and are independent of each other, independent of each other. Such a motion is called projectile motion. समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर।
प्लीज स्टूडेंट्स एकदम शांति से उसको अच्छी तरह से कंसेप्चुअली उसको देखो और ये सोचो कि मिरर है और बॉल आ रहा है और तुम सामने देखोगे, तो तुम बॉल को मत देखो जो प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तुम अगर तुम व्यूअर हो तो अभी तुम ग्राउंड पे जाओ, अभी तुम मिरर्स को मत देखो, तो तुम बॉल को देखो, तो बॉल का तो पैराबोलिक ही है। लेकिन ये पैराबोलिक का मतलब क्या हुआ? इट्स टू मोशंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वी कंसीडर साइमल्टेनियसली, and they are because of the influence of gravitational force of the earth. यहाँ पे does the speed and direction of motion changes? Yes. यानी अगर मैं बॉडी को लॉन्च करता हूँ स्टूडेंट्स, so let us say यहाँ पे जो बॉल है, तो सबसे पहले मैंने बॉल को लॉन्च किया at a speed u. Let us say this is initial speed. Path is parabolic. What is the angle traced by the body with the horizontal? Theta. यानी ये है velocity. मैंने ऑब्जेक्ट डांस, मैंने फुटबॉल को किक मारा at an angle theta with the ground, है ना स्टूडेंट्स? तो can I resolve this velocity into two components? Yes. So there are two velocities, one along the horizontal and one along the vertical. The velocity along horizontal I'll consider will be ux and this will be uy. तो यहाँ पे तुम्हारा horizontal का concept आता है और यहाँ पे आएगा तुम्हारा vertical का concept आएगा। What is the horizontal velocity we consider? So the horizontal velocity along x-axis we consider is u cos theta I cap. क्या ये clear हुआ students? Component of u, students, vectors, students, vectors. What is the component of vector along y-axis? uy, u sin theta j cap. एग्रीड। यानी जैसे जैसे फुटबॉल हवा में जाता रहेगा, तो स्टूडेंट्स कौन सा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगा? u cos थीटा, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्टूडेंट्स। ये ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो इज देयर एनी एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? सर, अलोंग द हॉरिजॉन्टल देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन, but is there any acceleration along y-axis? Yes sir, along y-axis, because अभी बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको एक pull of the earth आएगा, there will be gravitational force acting, every time there will be a gravitational force acting. So will there be acceleration along y-axis? Yes sir, acceleration along y-axis is minus g j cap. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Are you getting it? Yes. So does the speed and the direction of motion goes on changing? Yes, it goes on changing at each instant we consider. So there are two kinds of motion, students, we consider. It's vertical and horizontal. You have horizontal speed, we consider acceleration along x-axis is 0, acceleration along y-axis is minus g, which is a force which is acting on the body. It's only the gravitational force. What about air resistance? We neglect it. Rotation of the earth, we're neglecting it. Does the speed and the direction of motion goes on changing? Why not? अगर body यहाँ पे है तो ये इसके components हो जाएंगे. Now see, I'm trying to draw different times. Okay. बॉडी जब यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, बॉल जब यहाँ पे होगा तो ये थीटा होगा। एग्रीड। अभी बॉल अगर यहाँ पे है तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, देखो वर्टिकल तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे u cos थीटा ही होगा। आई कैप। विल इट हैव एनी वर्टिकल वेलोसिटी? नो। क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स। इट हैज ओनली वन वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट इज u cos थीटा, एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर बॉल यहाँ पे तो विच वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी u cos थीटा आएगा, ये क्या होगा? u sin थीटा, लेकिन along y axis, along x axis, और ये तुम्हारा थीटा हो गया। समझ में आ रहा है? ये देखो अभी नेगेटिव आई में जा रहा है। अगर बॉल जब स्ट्राइक होता है ग्राउंड को, बॉल जब स्ट्राइक होगा ग्राउंड को, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स कैन आई से ना, इफ इन केस इफ आई हैपन टू गो फॉर इट, तो ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली दिस विल बी? u cos थीटा आई कैप, वर्टिकल y will be equal to what? u sin theta j cap, but along negative direction, students, minus। क्या ये velocities clear है सारी जगह पर स्टूडेंट्स? Is the resolving part clear to all of you all? Yes, sir. Students, is the resolving part clear?
Yash is saying it yes. What about the rest of them? Yes, sir. Okay. The students, when a body is said to be projected with a speed u at an angle theta, you have two velocities we consider: horizontal ux, vertical uy. Ux is u cos theta, vertical uy is u sin theta. Is there any acceleration along x-axis? No, there is no acceleration along x-axis. The body goes with a constant speed horizontally. So what is the horizontal speed of the body? Always u cos theta. What is the acceleration along x-axis? Zero. Acceleration along x-axis zero. सारे problems में acceleration along x-axis zero. सारे problems में acceleration बार बार बोल रहा हूँ will be zero. सोच समझ के देखना. तो कोई one cannot raise question sir क्यों zero? सामने देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वो होगा. सब केस में तुम्हारा u का सीधा कांस्टेंट ही है थ्रू आउट. तो देयर इज नो एक्सेलरेशन. बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा है. स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से कांस्टेंट स्पीड से जा रही है स्टूडेंट्स, first 5 seconds 80, next 5 seconds 80, next 5 seconds, after 30 seconds if I ask you what is the acceleration, तो तुम क्या करोगे? सर एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. लेकिन आपने बोला कि फाइनल 80, इनिशियल भी 80 था, टाइम 30 सेकेंड्स. सर मेरा आंसर तो जीरो हुआ. वही चीज यहाँ पे है. लेकिन जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो विल देयर बी एनी एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस? यस, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट हैपेंस? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन चेंजिंग एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. ऊपर की तरफ जाओगा तो उसका स्पीड कम होगा, जैसे नीचे का तो वापस स्पीड बढ़ेगा. जब भी वो स्ट्राइक होगा तो ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव. जब भी वो लॉन्च होता है तो यू एक्स पॉजिटिव, यू बाय पॉजिटिव. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Students, are you all getting it? Yes or no? Yes, sir. Now when I speak about, it's a projectile motion, students. Okay, so now if in case if I ask you students what exactly the velocity, अगर मैंने पूछा students, can you tell me what is the velocity? एक simple question पूछा students. आफ्टर टाइम टी, चलो तुमने फुटबॉल को यहाँ पे लॉन्च किया. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, फुटबॉल को यहाँ पे लॉन्च किया. फुटबॉल को जब भी लॉन्च करते हो तो कुछ टाइम के बाद में फुटबॉल, लेट अस अज्यूम, पॉइंट पी पे पहुंचा. कुछ टाइम के बाद में पॉइंट पी पे पहुंचेगा. अभी मेरा क्वेश्चन ये है तुम्हें स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम टी सेकेंड, आफ्टर टाइम टी सेकेंड, ध्यान से सुना. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल एट पॉइंट पी? कौन सी वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी. रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए. तो तुम बोलोगे सर आफ्टर टाइम टी जब भी बॉल यहाँ पे होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड तो यही होगा. स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो मेरा क्या होगा? u cos थीटा. स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा ही रहेगा हमेशा. हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगा स्टूडेंट्स, ये चेंज नहीं होगा. क्या वर्टिकल चेंज होगा? होगा ना सर. आपने बोला क्यों होगा चेंज? क्योंकि सर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है. Can anybody find out the final velocity? Students, ध्यान से सुनना. After time t, let Vx be the final velocity after time t. Let V by be the final velocity after time t. And let V be the resultant velocity after time t. What is Vx? What is Vx? Sir, Vx is u cos theta. Speed is u cos theta. What is Vy? Can you find out Vy? Anybody can tell me what is Vy? Yes, can anybody tell me what is Vy? Friends, can anybody tell me what is Vy? See one thing, you're keeping your brains totally locked.
स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बोलता है ना कि मुझे लीनियर काइनेमैटिक्स समझ में आता है, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल मोशन, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो यू आंसर देगा। एक सीधा सोचने की बात है, हर बॉडी को तुमने ऊपर भेजा है तो बट ऑफ कोर्स सर उसकी वेलोसिटी कम होने वाली है, ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तभी जाके तो चिल्ला चिल्ला कि व्हिच शी वाज सेइंग इट बट नाउ शी इज नॉट यूजिंग अ ब्रेन्स, शी इज नॉट यूजिंग अ ब्रेन्स की इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड चेंज होगा, कम होगा। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी? तो तुरंत उसके दिमाग में आना चाहिए, अरे सर फाइनल वेलोसिटी क्या मैं ये यूज करता हूँ सर, v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करूंगा? क्यों नहीं? फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर टाइम t यानी vy है ना, ये uy, ये ay इन टाइम t। तो मुझे vy पूछा गया, मैंने क्या पूछा, vy पूछा है, तो vy का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी uy क्या है सर? uy तो u sin थीटा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सिस? सर आपने बोला था -g। अरे हाँ सर, ये तो वर्टिकल मोशन है, तो आपने बोला था -g इन टाइम t। ओ यानी सर ये होगा वेलोसिटी, ये होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t। यस, सो आफ्टर टाइम t स्टूडेंट्स, व्हाट्स द वेलोसिटी? vy, ध्यान से सुनना, vy is equal to u sin theta minus gt। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। स्टूडेंट्स, क्या ये रॉकेट साइंस है? क्या ये रॉकेट साइंस है? हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड, क्या हॉरिजॉन्टल स्पीड के लिए तुम इक्वेशंस यूज करोगे? हाँ सर, चलो ना करते, चलो ना करते, ये इक्वेशन चलते हैं, चलो। हॉरिजॉन्टल स्पीड आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ax लिखोगे ना, हाँ यहाँ पे ax लिखोगे ना। तो हॉरिजॉन्टली क्या स्पीड चेंज हो रहा है? स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। और जब भी तुम मिरर को देखोगे, बॉल भले ऐसे जा रहा है, तुम्हें बॉल तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो व्हाट इज ax? जीरो। डाल दो जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, बचा क्या? u cos थीटा। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ स्टूडेंट्स, students, are you all getting it? If it is yes, tell me yes. If it's no, tell me no. Otherwise, I'll move further ahead. This is something which is really weirdly taking place. It seems that I'm putting a lot of into you all, but you all don't want to work out in this manner. This is a very simple concept which No, I've sir. put across to you. और एक सीधा है तुम्हारे, तुम मॉडल को भी देखोगे तो कहाँ पे मिरर्स वगैरह नहीं पता है, लेकिन अगर तुम अच्छे वीडियोस देखोगे यूट्यूब के अंदर तो तुम्हें ऐसा वो दिखाएगा कि तो मिरर प्लेस किया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट देखो तो वर्टिकल में कैसा दिखता है, हॉरिजॉन्टल, तभी जाके दो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर मोशंस बता दिए, और ये स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, तो ये आ गया, खत्म हो गया, वी वाई के लिए ये फॉर्मूला आ गया, हो गया। यानी अभी तुम्हें वी बताना है स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म में, तो हाउ डू यू राइट इन वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स? अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिखाना है स्टूडेंट्स, तो हाउ डू यू राइट आउट? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी? एट पॉइंट पी यानी ये पूछा, तो कैसे करोगे? तुम बोले सर इट्स वी एक्स प्लस वी वाई, ऑफ कोर्स वेक्टर सम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी? तो क्या करोगे? व्हाट इज वी एक्स? सर वी एक्स विल बी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस व्हाट इज वी वाई? यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। आ गया तुम्हारा आंसर, यस। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, क्या करोगे? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यानी स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट पी? हाँ स्टूडेंट्स, अब मुझे ये बताओ, जब भी तुमने बॉल को किक मारा तो यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी या यहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा होगी? तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, सर जब भी मैं यहाँ से मारूंगा, यहाँ से किक मारा, तो ये रिजल्टेंट होगा यू एक्स प्लस यू वाई, यानी यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का एडिशन होगा, हाँ या ना?
लेकिन आफ्टर टाइम टी भी यहाँ पे जाते हो, आफ्टर टाइम टी यहाँ पे जाते हो, सर ये तो वैसे का वैसे ही है, इसका स्क्वायर तो वैसे ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन साइन आ गया ना, माइनस जीटी आया कि नहीं आया, यानी इसमें से कुछ वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, नेट वेलोसिटी को कम करेगा, इसलिए स्पीड कम हो रही है। लेकिन जैसे टॉप मोस्ट पोजीशन में चला गया, बॉडी जब भी टॉप पोस्ट पोजीशन में आता है, बॉल जब भी टॉप पोस्ट पोजीशन में आता है, फुटबॉल जब भी टॉप पोस्ट, उस टाइम पे वर्टिकल आएगा ही नहीं वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि बॉल तो इसके बियॉन्ड ऊपर जा ही नहीं रहा है। Students, the football is not going beyond this height, so it will have only one velocity, that is horizontal. So at the highest point, how many velocities the football will have? Only one velocity, and that is horizontal. Thus, the horizontal velocity remains constant throughout. Yes, therefore acceleration on the horizontal is 0. Is this clear to all of you, students? Students, are you getting it? Yes, sir. This is projectile motion is where speed and direction both goes on same equally. Such a motion is called as projectile. So keep this in mind, okay? X-axis, y-axis, the body is launched in this direction. Body is over here at a certain time, P is over here. This is U, this is theta, this is U cos theta, and this will be U sin theta. Okay, now path is parabolic. ये तुम्हारा ground है. Now students, let us find out. अभी देखो, after time t, यानी after time t body यहाँ पे है. Suppose if I say at point p, तो यहाँ पे हमें एक net velocity v मिला था, उसको हमने vx और vy, of course ये final velocity है after time t, तो तुम्हें दोनों का आंसर मिला था, vx और vy दोनों मिल गया था. यानी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट क्या पता था मालूम स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. जैसे बॉल पॉइंट पी की तरफ पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो देखो जैसे जैसे बॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी से केयरफुल, जैसे जैसे बॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है, डोंट यू थिंक सो द बॉल इज कवरिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. देखो पहला ये पोजीशन थी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये सेकंड पोजीशन तो अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अभी ये पोजीशन है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ. उसी टाइम पे क्या ये बॉल वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है? हाँ सर. उसी टाइम पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है? हाँ सर. उसी टाइम पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है? हाँ सर. तभी जाके साइमल्टेनियस हुआ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हो रहा है. Now if somebody asks me, students, what exactly the horizontal distance covered? What is the horizontal distance covered? यानी मैंने क्या पूछा तुम्हें? मैंने पूछा है rx and ry in vector form. तो क्या बोलोगे? हाँ students, what is the horizontal distance and the vertical distance covered by the body after time t? So I put forward after time t, r bar is a position vector, rx bar plus ry bar.
So R bar will be equal to what? What is Rx bar, students? Anybody can tell me what exactly Rx bar, students? So sir, Rx. This is speed along horizontal, distance covered along horizontal, time taken along horizontal. So Rx क्या होगा? U cos theta into T I cap. ये सब वेक्टर्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सब वेक्टर्स कर रहा हूं मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ. Nobody can say कि सर I'm not able to follow it. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, स्पीड डिस्टेंस टाइम. आफ्टर टाइम t पूछा तो Rx क्या होगा? U cos theta into T. मुझे बताओ Ry क्या होगा? What exactly Ry will be equal to? So what's the speed after time t, students? What is the speed after time t? And students, I want to find out the displacement of the body after time t. So what exactly displacement? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? S is equal to ut plus half at square, students. देखो ना, ये यूज करूंगा. I want Ry, यानी ये क्या है? Along y axis, along y axis, along y axis. ये क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट along y axis है ना. I want that. ये है डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. What is uy? U sin theta into t. What is acceleration along y axis? Minus g into t square. So what is the value of Ry? You got it. So Ry is equal to U sin theta into t minus half gt square. That's the distance covered. लेकिन ये कौन सा एक्सिस पे स्टूडेंट्स? ये y एक्सिस पे. तो कैन आई राइट ऑन द सेम आंसर इन j cap along y axis? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? U sin theta t minus half gt square along y axis. अभी समझ में आया? ये देखो क्या हुआ, ये देखो आफ्टर टाइम t रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. आफ्टर टाइम t व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो मैं पहले बता चुका हूं. vx को कैसे लिखोगे? vy को कैसे लिखोगे? v is equal to u plus at. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला. Friends, is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Students, here displacement r is equal to rx plus ry, and distance is what? Speed into time. Distance is what? यहाँ पे distance यानी y axis पे है ना, तो s is equal to ut plus half pt square यूज कर लिया मैंने. स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लो. वापस बोल रहा हूँ मैं, जब भी मैं फुटबॉल को, और एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर मैं फुटबॉल को किक मार रहा हूँ हवा में, तो जब भी बॉल बॉल हवा में जा रहा है, जब भी बॉल हवा में जा रहा है, तो उस टाइम पे हो क्या रहा है? उस टाइम पे हो क्या रहा है? तो तुरंत बोलेगा सर बॉल एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऊपर से वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है. बॉल जब यहाँ पे होता है तो देखो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, साइमल्टेनियसली वर्टिकल डिस्टेंस इतना किया. जब बॉल यहाँ पे आया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, वर्टिकली ये हुआ. तो ये तुम्हारा Rx हुआ, ये तुम्हारा Ry हुआ, ये तुम्हारा रिजल्टेंट R बार, वो हमने फाइंड आउट किया. Are you getting this, students? Can I erase this part, students? Sir, wait a minute. So I've told you about position vector and I've told you about velocity.
ये क्यों दे रहा हूँ मालूम है स्टूडेंट्स? बिकॉज प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड फॉर इंटरमीडिएट पोजीशंस, ये ध्यान में रखना। Sir, now you can erase. Now if I ask you, ये है पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट p, यानी ये r एट अ सर्टेन इंस्टेंट यानी p के टाइम पे ये पॉइंट p है वेलोसिटी। नाउ कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t? Students, what is the net acceleration of the body after time t? तो उसका रिलेशन क्या होगा? तो तुम्हारे सर नेट एक्सेलरेशन, ये सारे क्या है आफ्टर टाइम t, ये है पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम t, ये है वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम t, ये है नेट एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। तीनों का मैंने रिलेशन निकाला, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो हमेशा 0 होता है क्योंकि स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। व्हाट इज द स्पीड? u cos थीटा ही होगा। What is the acceleration along y-axis? Minus g. Along which axis? J cap. So what is the net acceleration? So the net acceleration is acceleration along y-axis minus g, j cap meter per second square. क्या ये clear हुआ? हाँ. अभी देखो बॉडी जब यहाँ पे टॉपमोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा स्पीड होगा? सिर्फ u cos थीटा। ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये तो मैक्सिमम हाइट है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। I'll call this as the range of projectile. Let's call as the range of projectile we consider. Now when the projectile is somewhere over here, so of course this is always u cos theta. This is at an angle theta. तो ये क्या होगा? Minus u sin theta j cap और ये I cap. When it strikes the ground, what about the horizontal? So the horizontal velocity all the time remains constant. What about the vertical velocity? Minus u sin theta j cap when it lands onto the ground. Such a path of a body is called projectile. Is this clear, students? So is it clear? Lavdi showing me thumbs up. No, she's unmuted. She's not unmuting. Kashish ने तो बोलना ही बंद कर दिया। है ना Kashish? Are you there? Kashish is not there. It seems like that in the lectures. Yes, sir, I am there. तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, वही मैं इसलिए समझ गई। अरे आज दिलशा का बर्थडे है। दिलशा, it's your birthday or what? दिलशा she's not there. See, she went off. Janvi, tell Dilsha now I'm not going to allow her to enter at all. Tell her to celebrate birthday only all the time. Okay, students, now come back, students. Now, students, can you tell me what about momentum? Okay, answer to students. What is the initial momentum of the projectile? कोई बता सकता है? जल्दी से. What is the initial momentum of projectile? Fast. Students, what is the initial momentum of projectile? Students, initial momentum of projectile, that means I need to go for initial velocity. Initial velocity in vector form will be u cos theta I cap plus u sin theta j cap
and this answer is in meter per second, and that is initial velocity. हाँ students, मैंने पूछा initial momentum तो क्या करोगे? Multiply by mass of football into velocity of football. So can I write on m into bracket u cos theta I cap plus u sin theta j cap kilogram मीटर पर सेकेंड. ये क्या हुआ? इनिशियल मोमेंटम ऑफ फुटबॉल. तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लॉज ऑफ मोशन किया है कि नहीं किया है? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज लॉज ऑफ मोशन डन? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो लॉज ऑफ मोशन में क्या होगा? तो मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल. अभी मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम टी? कम ऑन फास्ट एनीवन. फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम टी. Sir, u cos theta I cap minus u sin theta j cap, I guess. I said it, final momentum after time t. If I say final momentum after time t will be mass of the football into the final velocity after time t. What is the final velocity after time t? Can I say it is vp? है ना? तो इससे तुम m को मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स? है ना? Mass into velocity is called momentum. What is the final momentum after time t? After time t, where is the body reaching? At point P. तो ये तुम्हारा final velocity हुआ ना? तो mass into velocity. तो क्या करोगे? m के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो. ये देखो, u cos theta I cap plus into bracket u sin theta minus gt j cap. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्यों इतना ब्रेन को स्ट्रेस दे रहे हो? सब कुछ सामने आंसर है. सिर्फ वो बात है कि बॉडी सर्कुलर में, बॉडी एक राउंड में जा रहा है, साइन और कॉस कंपोनेंट आ गया तो बस हो गया, सरेंडर कर दिया. जब ये क्लियरली बताया है कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, खत्म हो गई बात. ये क्यों दे रहा हूं? क्यों दे रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम टी. स्टूडेंट्स फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम. तो क्या करोगे? सर फाइनल मोमेंटम ये निकाला आपने, m को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, m को ये दोनों से भी मल्टीप्लाई करोगे, ये फाइनल, इसमें से किसको सबट्रैक्ट करोगे? सर ऊपर वाला जो इक्वेशन m को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो सबट्रैक्ट करोगे. यानी इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है. क्या बचेगा? कोई मेंटल मैथ्स कर सकता है? बिना लिखे कोई आंसर दे सकता है? उसको बोलते हैं हम मेंटल मैथ्स. बिना लिखे कोई आंसर दे सकता है? तो तुरंत कोई स्मार्ट बंदा होगा, बोलेगा सर अगर मुझे इसमें से इसको सेपरेट करना है, ये तो एम यू कॉस थीटा आई कैप होगा, ये माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, वो कैंसिल हो जाएगा. सर ये प्लस एम यू साइन थीटा होगा, ये माइनस एम यू साइन थीटा, वो भी कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? सर प्लस इंटू माइनस माइनस एम इंटू जी इंटू टी. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? व्हाट इज माय फाइनल आंसर? What is my final answer? M into G into T J cap with what sign? Negative sign. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हाँ. अदरवाइज आई एम सॉरी, आई शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स. तुम्हें एकदम सिर्फ इजी फॉर्मूलाज देके छोड़ देता हूँ फुल में. नहीं सर, क्लियर हुआ. I feel like your brain is not ready to accept things. Where things are so straightforward and very clear. जिसका वेक्टर स्ट्रांग होगा वो आराम से कर सकता है स्टूडेंट्स. सारे कंपोनेंट्स तो लिए मैंने.
इनिशियल मोमेंटम मैंने बता दिया है, फाइनल मोमेंटम बता दिया, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बचेगा। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम टी पूछा मैंने। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज है। स्टूडेंट्स वो पूछेंगे फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम स्मॉल टी, ऑप्शंस में देंगे माइनस एम जी टी जे कैप, फिर प्लस एम जी टी आई कैप, फिर एम वी में देंगे, दो ऑप्शंस अलग देंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या आंसर होना चाहिए। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, चलो और एक क्वेश्चन, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, स्टूडेंट आंसर सुनना, फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो तो बता सकते हो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल एंड फाइनल आफ्टर टाइम टी, नहीं बोला फाइनल बोला मैंने। व्हाट इज द आंसर? What is the formula for change in momentum of the projectile when the projectile completes a journey? Anyone who wants to give an answer? Friends, anybody wants to give an answer? अरे कंप्लीट से जर्नी यानी ये हो गया, यहाँ पे लॉन्च वहां पे हो रहा है, कंप्लीट यहाँ पे कर रहा है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, इसको मारो गोली। स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा है? मैंने जब ये वर्टिकल मोशन में बोला था, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुमने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ओके, और वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद में तुम्हारे हाथ में वापस आता है उसी लेवल पे, तो व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट कम्स इनटू योर हैंड? विल इट बी मोर देन 20, लेस देन 20 और इक्वल टू 20? इक्वल। यहाँ पे कुछ अलग होगा? हाँ, यहाँ पे कुछ अलग होता है क्या? यहाँ पे जब यू साइन थीटा ऊपर जाने के लिए, तो व्हेन इट स्ट्राइक्स इट विल माइनस यू साइन थीटा, दैट्स ऑल। The body is going to land up with the same velocity. Horizontal speed remains constant. इतना क्लिक नहीं हुआ? और अगर जब भी मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसको रिजॉल्व किया, तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम यही मुझे पूछ रहे, सर आपने यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा क्यों लिया है? फाइनल वेलोसिटी तो अलग होनी चाहिए ना? तो नहीं होगी स्टूडेंट, जो वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड्स, वही वेलोसिटी, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये माइनस जे वो प्लस जे में है। अभी चेंजिंग मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इन दोनों का एडिशन, माइनस इसको माइनस करोगे तो यू कॉस थीटा चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? सिंस चेंजिंग मोमेंटम क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म? फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस 2 एम यू साइन थीटा जे। क्या ये क्लियर हुआ? ये देखो ना, फाइनल मोमेंटम, इसको मल्टीप्लाई में मास करो, माइनस इनिशियल एम इंटू यू, तो क्या होगा? 2mu sin theta j cap. Is this clear, students? Yes. Simple. Since it's a motion of a body under the influence of gravitational force of the earth, where the motions are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, and they are independent of each other. Now over here, what happens to the speed and direction of motion will go on changing. Why does it goes on changing? Because of effect of gravity. Because of effect of gravity. Our frictional force, अगर suppose मैं friction लेता ना students, friction लेता ना तो ये speed नहीं होती। स्टूडेंट्स जब भी हम वर्टिकल मोशन में कर रहे थे तो टाइम ऑफ असेंट वाज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट क्यों लेते थे? बिकॉज वी निग्लेक्टेड फ्रिक्शन, वी निग्लेक्टेड फ्रिक्शन। What makes me to say that we neglected friction? Because the body was coming down with same acceleration, 9.8 meter per second square. And students in 9th standard, you have learned about acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is that acceleration possessed by the body in absence of air resistance.
In absence of air resistance, the body comes down with uniform acceleration called acceleration due to gravity. तो जब भी हम air resistance को neglect करते हैं ना students, time of ascent will be always equal to time of descent. दूसरी बात, जो velocity से तुम project करोगे, उसी velocity से body land करेगा. तो यहाँ पे भी वही होता है, जो velocity से तुम launch करोगे vertically, उसी velocity से वो vertically downward भी आएगा. तो सर क्या यहाँ पे भी time of ascent is equal to time of descent? हाँ, वो हम फाइंड आउट करेंगे बाद में. लेकिन अब तक क्या ये सारा मैटर क्लियर हुआ? हाँ सर. Everyone, please, I'm not teaching only one or two students, please, the rest of the students also. Amira, is it clear? No. Sakshi, is it clear, Sakshi? Yes. Okay. Bhairavi, what about you, Bhairavi? Dhruv, Yes, sir. Dishant, Janvi, what about you, Janvi? Janvi, समझ में आ रहा है? Janvi, are you there or you're celebrating birthday party? Okay. कशिश समझ में आ रहा है? कशिश कि नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ. हाँ, तो तुम रिप्लाई तो करते नहीं हो, सो रहे हो ऐसा लग रहा है. हाँ कशिश. खान नहीं. मोहम्मद, खान नहीं मोहम्मद सर. Zahid. Fine. Khan Mohammed Zahid, are you understanding? Krish. See, Khan Mohammed Zahid is not answering. Krish is not answering. Yes, sir. Okay. Krishit, 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 are you getting it, Krishit? Krishit, game of football चल रहा है. Labdi, what about you? Yes sir. Okay. Mayank, Yes, sir. Paniti, Rakshanta, Prachi, Sania, Tejas, Vishal, Yash. Yes, sir. स्टूडेंट्स यानी जब भी अभी तुम्हें ये कैसे प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स, जब भी तुम ये करोगे ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तुम बॉडी के लॉन्च करो ना, तभी उसका स्पीड निकालना. आई गेट इट. फिर यहाँ पे एक पॉइंट पी लिखना और उसका फाइनल वेलोसिटी dx v/v लिखना. यहाँ पे आएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा, यहाँ पे आएगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेकिन डाउनवर्ड, फाइनली यही होगा. जब भी तुम इसके बारे में लिखो ना, तो तुरंत तुम्हारे यहाँ पे एक आंसर आना चाहिए that since we neglect air, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स. Since we neglect air resistance, we consider the speed of body vertically upward is equal to the speed vertically downward. फिर horizontal speed does not change, remains constant. So horizontal speed is a distance covered horizontal upon time taken. Horizontally we consider. So speed is equal to distance upon time. यानी स्टूडेंट्स ये तुम्हारा rx हुआ, ये ry हुआ, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हुआ. यानी अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, कंसीडर द आंसर लाइक स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर. तो स्टूडेंट्स ये मेरा पोजीशन वेक्टर हुआ, ये rp. आई गेटिंग इट. ये r है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल rx और ये मेरा वर्टिकल ry. तो मैंने rx निकाला, ry निकाला. देखो ना, वर्टिकल के लिए तो मेरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ut प्लस हाफ et स्क्वायर ओनली. एक्सेलरेशन नेट माइनस जी, क्योंकि एक्स एक्सिस तो जीरो है. यानी तुम ऐसे डिराइव करो बैठे बैठे, तो तुम्हें समझ में आएगा. इनिशियल मोमेंटम सर, इसके साथ में सिर्फ मास करना है मुझे बस. ये इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, तो इसके साथ में मुझे मास मल्टीप्लाई करना है. चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल माइनस इनिशियल, जीटी में आएगा मेरा आंसर. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल. ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव होगा क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है ना. तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है ना. बॉल यहाँ पे स्ट्राइक होकर नीचे की तरफ ही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड फाइनल. आर यू गेटिंग इट? कैन आई इरेज दिस स्टूडेंट्स? अभी मैं इरेज कर दूं इसको. हाँ. ओके.
Okay, now students will go for equation of projectile. Okay. Equation of projectile. Yeah, equation of trajectory. Students, the word trajectory is a path traced by projectile. ये ध्यान रखना. The word trajectory stands for path traced by projectile. And what is a path traced? What is a path traced? Parabolic. ये ध्यान रखना. तो अगर कोई भी projectile motion का path parabolic है, तो what is an equation of parabola? What is equation of parabola? तो बता सकते हैं students? Equation of parabola क्या होगा? Any equation which can be expressed as y is equal to ax plus or minus bx square. And it's a quadratic equation. Degree 2, where a and b are constants. Such an equation is called as equation of parabola. Students, parabola यानी cup shaped. तुम्हारा ग्राफ cup shaped यानी for example अगर मैंने ऐसा एक्सेस दिया students, तो ये parabola है, ये भी 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 parabola है students. Mouth upwards, mouth downwards, parabolic, parabolic. mouth along positive x-axis, negative x-axis. Students, अगर suppose मैंने y दिया है और माइनस माइनस डाला है students, ये suppose अगर मैंने y दिया है ax minus bx square ऐसे दे दो, तो मेरा इक्वेशन कैसे, मेरा ग्राफ कैसे होगा मालूम है? मेरा ग्राफ ऐसा होगा, यानी इट विल बी एन इन्वर्टेड पैराबोला. क्यों? क्योंकि मैं इसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ पैराबोला. स्टूडेंट्स, ये है मुंह, माउथ ऑफ पैराबोला. द माउथ ऑफ पैराबोला इज फेसिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस. दिस नेगेटिव साइन कंसीडर्स. अगर ये पॉजिटिव होता तो मेरा पैराबोला ऐसा जाता, ऐसा होता या ऐसा होता. वेयर इज द माउथ फेसिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव. Is this clear, students? Students, ये सब तुम कहाँ पे पढ़ोगे? ये सब तुम कहाँ पढ़ोगे तुम लोग? You'll be learning it in mathematics under chapter conics. Hyperbola, parabola, ellipse. वहाँ पे तुम पढ़ोगे students. So what exactly equation of parabola, students? Any equation which is in the form of y is equal to ax plus or minus bx square, it's an equation of a parabola. And it has an order to what are a and b over here. A and b are constants. यानी अगर मैं अभी प्रूव करूंगा ना, अभी मैं अगर डिराइव भी करूंगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मेरा इक्वेशन इसी फॉर्म में आएगा. ये तुम्हें एक मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि किसी भी हाल में एक वेरिएबल x होगा और x स्क्वायर भी होगा. तुम्हारी इक्वेशन में x भी आएगा और x स्क्वायर भी होगा, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, इसलिए y आ रहा है. वर्टिकल के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल x के हिसाब से आ रहा है. दो मिरर्स रखे हुए थे, तभी जाके तो बोला है it's two motions mutually perpendicular to each other, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है. They do not depend on each other. Let us go for equation of a parabola. Now to get an equation of parabola, students, again diagram I'll keep it same. X-axis, y-axis, origin 0, 0. Body is projected with an initial velocity u. The components over here at an angle theta will be ux, and this will be uy. So the call is u cos theta I cap, u sin theta j cap. Path is parabola we consider. At the maximum height, this is the maximum height we consider, h max. This is the range. Maximum horizontal distance of the projectile is the range of the projectile we consider. Okay, the velocity at the topmost position is almost u sin theta, which remains constant, students. Now I want to go for equation of projectile. Students, अगर मुझे equation of projectile चाहिए तो मैं कौन सा, first of all I'll go for the equation. I can go for the formula, students. I can go for S is equal to ut plus half a t square. ये equation मैं use करूँगा
to find out equation of projectile. ये क्या है? Displacement along y axis. ये क्या है? Velocity along y axis. ये क्या है? Time taken by projectile. ये क्या है? Acceleration along y axis. And this is time t. Let us say, let us say that the projectile is at a certain interval we consider. At a certain interval we consider of time t. ध्यान से सुना, ये t का मतलब क्या मालूम है? कुछ टाइम के बाद में, यानी वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ टाइम के बाद में. तो व्हाट एग्जैक्टली द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? तुम बोलोगे y. शुद्ध समझ में आ रहा है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y. मुझे बताओ uy क्या होगा? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? uy क्या लिखोगे जल्दी से? uy क्या लिखोगे? हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस uy? तो बोलोगे u sin थीटा. What is the time taken? What is the time taken in this case? Sir, I can write down, since my equation is simultaneous vertical and horizontal, can I write down time as t? Yes. बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t को, क्योंकि मुझे इक्वेशन किस में चाहिए? x में चाहिए, मिलेगा ना मुझे. प्लस half into what is the acceleration along y axis? Minus g into t square. So now can I say my equation will be y is equal to u sin theta time t minus half gt square. Students, after time t, after time t, what is the vertical displacement of the football was? Y. After time t, the vertical displacement y. What is the horizontal distance covered? तुरंत तुम्हारे हाथ में, अरे सर, speed is equal to distance upon time. Let us say the horizontal distance is x. Students, ये horizontal distance है ना. Suppose अगर मैंने यहाँ पे लिया, तो let us say the horizontal distance over here is x. Vertical distance is y. After time t, vertical distance मुझे y मिल गया है. Horizontal distance मैंने x ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मुझे 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 t को क्या सब्स्टिट्यूट करना है? Therefore exactly t को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? Then t is equal to what? X upon u cos theta. Friends, can I substitute this t back over here? Now can I get my equation? Now can I get my equation? Look over here. Y is equal to u sin theta. Instead of t, what should I write down? X upon u cos theta minus half g into t square. Means can I say x upon u cos theta the whole square, students? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. So is it clear to all of you all? Students, is it clear to all of you all? Yes. Yes, sir. It seems that I'm speaking to walls, you know that? ऐसा लग रहा है कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ. I'm in my home, but just speaking to the walls. Nobody's into this particular room. It's completely soundproof. लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. पगला गया हूँ मैं. Whereas in the morning hours with the other students, there is an interaction going on. Yes, sir, I'm able to get it. Answer मिलते हैं. यहाँ पे तो अभी सारे जब कुछ दिमागी यूज नहीं हो रहा है. इतना बोलने के बावजूद भी कि आफ्टर टाइम टी है, जब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, मुझे इक्वेशन x में चाहिए, तो टाइम को कैसे लिखोगे? सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में लिख दिया, उसमें फर्क क्या हुआ? कभी आया ना तुम्हारा साइमल्टेनियस? देखो, लीनियर एज वेल एज वर्टिकल. ये तुम्हारा कैंसिल हो गया. व्हाट्स द फॉर्मूला विल लिख दें? हाँ सर, अभी फॉर्मूला आपका होगा y इज इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस हाफ g x square upon u square cos square theta. Now students, can you try to rearrange this in form of the given expression? Y is equal to ax minus bx square. तो पता चल रहा है कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? अरे हाँ सर, tan थीटा हमारा a हो सकता है,
ओ सर, यानी जब ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोगे या एमसीक्यू दोगे तो वहां पे शायद हमारा ए tan थीटा होगा, कॉन्स्टेंट्स भी आप पूछोगे, हमारा बी क्या होगा? सर बी शायद आप बोलोगे ये है क्योंकि पीछे सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। अरे हाँ सर, ये पूरा बी आ गया, ये पूरा बी आ गया, दिस इज एंटायरली बी। So now if I have to consider, is this equation of a projectile? Yes. Is this equation in the form of ax minus bx square? Why not? Where is the mouth? Is it negative axis? Yes. The mouth is facing towards what? Towards negative axis. Is this an equation of a parabola? Yes, it's an equation of parabola. What are the constants over here? The constant. First case, a क्या है? Tan theta. What is b? G upon 2 u square cos square theta. This is what an equation of projectile is. The same equation, students, can be written in this form also. जब भी MCQs करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बाद में मैं बताऊंगा ये इक्वेशन कैसे आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रिमेम्बर करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन आल्सो बी रिमेम्बर्ड एज और y is equal to x tan theta into bracket 1 minus x by capital R. What does capital R stands for? Range of projectile. और ये रेंज का फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा बाद में, लेकिन ये रेंज का फॉर्मूला मैं अभी दे देता हूँ तुम्हें। Friends, formula for range is given as u square sin 2 theta by j. यानी अगर तुम ये r का फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे, r का फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें ये आंसर मिलेगा। अभी वो मैथ्स कर लेना तुम घर पे बैठ के, सिंपल मैथ्स है, ट्रिक है, लेकिन ये एक इजी तरीके से याद रखने के लिए स्टूडेंट्स को दिया है। अगर तुम अपने आप को कंपेयर करोगे विद रेड हाउस या ब्लू हाउस, 10 में से वहां पे 7 स्टूडेंट ये इक्वेशन बोलेंगे, कैपिटल आर में इक्वेशन बोलेंगे, फाइन, डजंट मैटर, इट्स गुड इनफ, लेकिन आर का फॉर्मूला उन्हें मालूम होता है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, ये भी याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज इसमें भी आता है, और अगर तुम आर का फॉर्मूला डाल दोगे तो ये आएगा, तो दोनों तरीके से सही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Thank you. Now students, can you find out the formula for time of journey, जिसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ जर्नी का मतलब क्या पूछा मैंने? टाइम ऑफ जर्नी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T. Can you find out time of journey or time of flight? Anybody? Total time taken for the projectile. चलो, I'm giving you all 2 minutes. 2 मिनट के अंदर सोल्यूशन आता है स्टूडेंट्स। टाइम ऑफ जर्नी और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, यानी उसका मतलब क्या है कि किसी ने फुटबॉल को किक मारा, उस टाइम पे तुमने अपना स्टॉपवॉच चालू किया, जब भी बॉल लैंड होता है ग्राउंड पे उस टाइम पे तुमने स्टॉपवॉच को बंद किया, वो वाला टाइम चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे ये स्मॉल टी नहीं चाहिए, मुझे ये कैपिटल टी चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। Anybody? See, the strength of the students was around 26.
And now just 17, 10 students, almost 10 students, 8 to 9 students are out. Parents are least bothered. Amira, are you there, Amira? Amira, are you there? Are you listening to the lectures? Or you are not at all physically present, mentally absent, Amira? See, no reply. क्या करूं मैं? सबको निकाल दूं? जो रिप्लाई नहीं करते सारों को निकाल दूं? हाँ? Anu, are you there? Dhruv, are you there? Yes, sir. Okay. Yes, तो sir. अमीरा को निकालना पड़ेगा फिर. Nishant, are you there? Nishant, are you there? Nishant, are you there? नहीं है. अच्छा, अमीर और निशांत दोनों को निकालना पड़ेगा. जानवी, Sir, I got the answer. you got the answer. क्या है बोलो? Sir, it's 2u sin theta by g. Very good. कौन सा फॉर्मूला यूज किया तुमने? ut plus half at square. How did you came to that conclusion? Sir, it's like 2 sin theta into t minus plus half minus g t square is equal to 0. That's why फिर पूरा substitute and all करेंगे. That's why it's like आजू बाजू ले जाएंगे तो आ जाएगा आंसर. आजू बाजू लेके जाएंगे तो आ जाएगा. स्टूडेंट्स थोड़ा फॉर्मूला यूज करना है ऐसे. स्टूडेंट्स ये मैंने क्या बोला, एक वर्टिकल मोशन के हिसाब से देखो ना. जिस स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे क्लास को पूछा, लेकिन तुम्हें सोचना कैसा था? अभी मैंने बताया फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, तो इतना तो समझना चाहिए था कि टाइम ऑफ असेंट शुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. क्या मैं वर्टिकल मोशन का इक्वेशन ले सकता हूँ? क्यों नहीं? ले लो. एस इज इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. बॉडी मैंने लॉन्च किया, वापस ग्राउंड पे आ रहा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 हो जाएगा. What is the velocity along y-axis? It will be u sin theta. What is the time taken? It will be time of flight, capital T, plus half. What is acceleration along y-axis? Minus g. So minus g by 2 into t square. Can I take this on the other side? Can I take this on the other side? Yes, t will get cancelled. So what's the formula for time of flight? 2u sin theta by g. क्या ये क्लियर हुआ? फ्रेंड्स, क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर. कशिश 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 कशिश, are you there? Kashish, are you there? Kashish, are you there? Yes, sir, I'm there. No, you're not there. You didn't reply. Amira, are you there? Amira, are you there? Sir, I replied. Nishant, are you there? Nishant, are you there? Mayank, Paneri, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rakshanda, Sakshi, Sania, Yes, sir. Yes, sir. Vishal, Yash, Tejas, Yes, sir. sir. Tejas, Yash. Yes, sir. Okay. Fine. Prachi, what about you? Paneri, what about you? Yes, sir, I'm there. Okay. Students, S is equal to ut plus half at square. मुझे ये बताओ. Dhruv, are you there? Can you unmute yourself? Dhruv, are you there? No reply.
Okay, कशिश are you there? Yes, sir. अभी मुझे बताओ कशिश, ध्यान से सुनना. Everybody those who are not able to get this part. कशिश, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुमने ऊपर फेंका, उस टाइम पे लब्धि ने स्टॉप वॉच चालू किया, अब तुमने उस बॉल को हाथ में पकड़ा, उस टाइम पे उसने स्टॉप किया. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम ऑफ जर्नी for a body thrown vertically upwards and coming down vertically? क्या तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला? Sir, it is equals to times of ascent. Means the same formula, ut plus half at square. हाँ, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का? तुमने थ्रो किया और वापस तुम्हारे हाथ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. 0. इनिशियल स्पीड क्या होगा? u ही होगा. हाँ sir. टाइम तो t होगा ऊपर जाने Yes, का और sir. वापस नीचे आने का. ये क्या होगा? -g होगा. Yes sir. ऊपर तो जा रहा है यहाँ इसलिए पे माइनस जी. हाँ, तो तुम्हारा फाइनल टाइम क्या होगा? टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट फ्लाइट 2u/g होगा. Yes sir. 2u/g समझ में आ रहा है? हाँ हाँ. अभी अभी मुझे ये बताओ कशिश, व्हाट इज द टाइम टेकन ओनली टू गो अप? टाइम टेकन ओनली टू गो अप, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? V equals to u plus at. हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी ऊपर क्या होगा? 0, 0. which is equal to u minus gt. Yes sir. तो t is equal to u/g. Yes. तो टाइम ऊपर जाने के लिए u/g, नीचे आने के लिए u/g, टोटल टाइम कितना हुआ? 2u by g. जो तुमने डिराइव किया. ये इक्वेशन Yes. क्या है? ये इक्वेशन क्या है? टू यू sin theta by g. अभी सपोज थीटा, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा नहीं दिया और मैंने थीटा को 90 ले लिया, तो व्हाट इज साइन ऑफ 90? व्हाट इज साइन ऑफ 90? 1. तो वर्टिकल मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो u/g का Yes. फॉर्मूला आ गया. Yes sir. और ये प्रोजेक्टाइल है, तो टोटल टाइम टेकन विल बी व्हाट? 2u sin थीटा बाय g, और ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा. गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes sir. तो अभी मुझे बताओ टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये टोटल टाइम है ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का, एंड टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. तो इसका आधा. व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? u sin theta by g. Agreed. u sin theta by g. What is time of descent? u sin theta by g. Add total time to u sin theta by g. Got it, students? Got it, everyone? Yes sir. sir. Yes, sir. Now let us find out only time of ascent. Time of ascent, projectile के लिए time of ascent. Which equation will use for time of ascent? Only time of ascent for projectile motion. V equals to u plus at. Very good. At the highest point, what exactly the velocity vertical? Is there any velocity vertical at the highest point? No sir. I gotta get. What is the initial velocity vertical? 0. Initial velocity 0 है क्या? तो body ऊपर ही Sorry नहीं sir, आएगा. uy. That is what? uy क्या है? u sin theta. Yes. तो 0 is equal to u sin theta minus gt. Yes sir. So did you get time of ascent u sin theta by g? Yes sir. Students, ये पूरा काइनेमैटिक्स ही है. ध्यान से समझ के वापस आज का आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के समझ के करना स्टूडेंट्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर. और ये प्रूफ एक एक चीज वापस प्रूफ करते रहना. अगर 2-3 दिन कंटिन्यूअसली तुम करते रहना, फिर फिक्स हो जाएगा ब्रेन में, और तुम्हें फिर एकदम लगेगा अरे यार तो एकदम इजी है. रात को अगर 3 बजे भी उठा के मामा ने पूछा ना व्हाट एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम आफ्टर टाइम टी, चलो मैंने पूछा व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर द कंप्लीट लॉन्च इनिशियल टू फाइनल, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फास्ट, बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल.
यानी बॉडी को यहाँ पे लॉन्च किया है, स्ट्राइक यहाँ पे किया है। मैंने पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जल्दी से। देखा कोई आंसर नहीं दे रहा, देखा कोई आंसर नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे ग्रुप में कोई सेंसिबल बंदा होता ना, वो क्या बोलता मालूम है? सर आपने पूछा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब सर काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो उसमें तो आई जे के डब्ल्यू पी फी फी कुछ नहीं आएगा, वेक्टर्स आएगा ही नहीं सर। वो तो सीधा सीधा हिसाब है, उतना समझ में आना चाहिए। किसको आना चाहिए? एक अच्छे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो 11th में आया है उसको, क्योंकि 10th में पढ़े हुए हो तुम लोग स्केलर्स। तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आई जे के तो आएगा नहीं। आपने पूछा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी फाइनल माइनस द इनिशियल। सर फाइनल में जब भी आपने डायग्राम दिया था तो एक तो यू साइन थीटा था, एक तो यू कॉस थीटा था, है ना? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मुझे मिलता है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मिलता, लेकिन दोनों यू और यू साइन थीटा कॉस थीटा में ही है। इनिशियल भी क्या था? अरे सर इनिशियल भी यू साइन थीटा यू कॉस थीटा ही है। आपने बोला डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो half m final velocity the whole square, half m initial velocity the whole square. So final velocity when it strikes the ground, initial velocity when it strikes the ground. What is the striking ground? Striking के time पे उसकी final velocity क्या होगी? Vertically downward, u sin theta. What is the final velocity? So what is the initial velocity which is going upwards? U sin theta. दोनों को स्क्वायर करो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को सबट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा? 0। ओ यानी सर अगर बॉडी को मैंने प्रोजेक्टाइल किया फ्रॉम पॉइंट ओ और यहाँ पे लैंड किया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0। यस, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल u sin थीटा, वेलोसिटी फाइनल u sin थीटा। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या नेगेटिव साइन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है। चेंज क्या हुआ? 0 हो गया। स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा था मैं? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से। यू व्हेनेवर एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, व्हेनेवर somebody is teaching something which I've told you earlier also, when you know that sir has done up till so and he's going to do projector, in that case एक थोड़ा सा ब्राउज कर लेना चाहिए था, स्टोरी बुक की तरह देखना चाहिए था, लेकिन वो सब तुम करते नहीं हो, तुम सीधे लेक्चर में बैठ जाते हो। और तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमें तो समझ में आना ही चाहिए, हम लोग 10th स्टैंडर्ड पास किए, हमें 90% से ऊपर मिला है, तो किसी भी हाल में हमें आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो उसका मतलब IITian हब में खराबी है, टीचर में खराबी है, हमें तो एकदम आना ही चाहिए, हमारा ब्रेन तो एकदम इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टडीज तुम कर रहे हो ना, ये लेवल इज 10 स्टेप्स हायर देन व्हाट इज द लेवल ऑफ 10th। 9th और 10th की पढ़ाई पढ़ाई नहीं थी स्टूडेंट्स। 9th एंड 10th के अंदर तुम्हें जो परसेंटेज मिले हैं ना, अच्छी बात है, उससे तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि तुम्हें कुछ आता है, लेकिन वो परसेंटेज से, वो परसेंटेज जो तुम्हें मिले हैं उससे क्या तुम आज की तारीख में अपने आप को जज कर सकते हो फिजिक्स में कैसे हो? जरा भी नहीं। इवन द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन जज राइट नाउ, they don't know where exactly they are because the studies are 10 steps higher. For that you have to put in more and more and more efforts. Can I erase the students? It's going to erase the students. sir. The students have made it very clear in this case. तो मैं change in kinetic energy पूछा है, change in momentum भी पूछा है students. Are you getting it? I've given you the equation of projectile also. I told you about time of flight also to use sin theta, and time of ascent is equal to time of descent also.
This is. Now for the same diagram, students, for your homework, next lecture, students, मुझे क्या करना है? I want you to get the कहाँ पे भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, students. You are not going to see into your modules, not even into your textbook. मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए डेरिवेशन में, students? You know, I want you to find out the height of projectile, okay, and the formula for range of projectile. यानी अगर कोई फुटबॉल को किक मारेगा at an angle theta with a velocity u, तो क्या मैक्सिमम हाइट तक फुटबॉल जा सकता है और क्या कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारी चीजें होती है इन अ गेम ऑफ फुटबॉल. जो 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 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट द प्लेयर्स जस्ट प्ले लाइक दैट. द बिग टीम्स व्हिच यू सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, समवेयर क्लब्स, जितने भी अच्छे क्लब्स हैं स्टूडेंट्स, वहां पे हाउ डू दे लर्न दिस? ये बहुत टेक्निकली दे अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ग्राफिकली उनको बैठते हैं, सेशंस होते हैं, उनके यहाँ पे भी फिजिक्स टीचर होते हैं उनको समझाने के लिए. और फिर उनके बाद में उनके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं. जो 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 गोलकीपर किक मारेगा विद एन एंगल थीटा और उसकी वेलोसिटी, उसके पाँव में मशीन्स डाले होते हैं, उससे उसकी वेलोसिटी भी जज होती है. क्या एंगल से मारा वो भी पता चलता है. तो कितने डिस्टेंस पे वो प्लेयर खड़ा होना चाहिए उनके टीम का, जो हेडिंग लेते हुए गोल करेगा. वो सारे कैलकुलेशंस होते हैं यहाँ पे. So these are all based on the projectile. So next lecture, students, I want you to get the height of projectile and range of projectile by yourself. Is that clear, students? क्या ये clear हुआ, students? हाँ सर हुआ. Okay, Yes. fine. Next lecture will be continuing further, right? Okay, students? And kindly revise all the formulas also. Okay? Okay. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, sir. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir.